جی میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ پہلے تو وہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ٹرائی ٹو سبسکرائب دا چینل۔ ٹاپک پاکستان ہے، یہاں کا بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ کوئی 37-38 ملین اراؤنڈ ارلی ووٹنگ ہوئی ہے، وچ از ہائیسٹ نمبر گوئنگ ٹو بی کلوز 30% ناؤ، اور 12 ڈیز ابھی رہتے ہیں۔ فیئر ہے بیسکلی لوگوں میں کرونا کا، پینڈیمک کا، اور پھر یہاں پر جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے لڑائی جھگڑے کا، تو لوگ لاسٹ ڈے جانے سے 3 نومبر کو جانے سے جو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دور رہیں، اور کرونا تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ 2,25,000 کے قریب لوگ ہو چکے ہیں، 8.2 ملین پازیٹیو ہیں، اور کہتے ہیں کہ آنے والے دن سنگین سے سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ آلریڈی $16 ٹریلین کی اکانومی بیٹھ چکی ہے اور روز گر رہی ہے، اور ابھی تک لوگوں کو ریلیف پیکج بھی نہیں ملا ہے۔ آپس میں اپوزیشن اور حکومت کی لڑائی بالکل پاکستان جیسی لڑائی ہے اس وقت، جیسے وہاں سارا۔ تو بہرحال بائیڈن جیت رہے ہیں بظاہر، ایک اوہایو میں 1.7% سے جیت رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی 90% جیت جائیں گے، مگر ہے یو نیور نو۔ اینی وے پاکستان پہ آتے ہیں کہ دیکھیں جی جو ہو رہا ہے، حکومت کا سب سے زیادہ نقصان اس کھیل میں حکومت کا ہو رہا ہے۔ جب یہ عمران خان صاحب کو جتوایا گیا، ظاہر کیا گیا کہ وہ پرائم منسٹر بننے ہیں، تو مجھ جیسے بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایک زیر جہاں دیدہ، چالاک، عیار اور منظم، تجربے کار اپوزیشن کو بھگتنا عمران خان جیسے جذباتی آدمی کے لیے بہت مشکل کام ہوگا۔ اور وہی ہو رہا ہے کہ وہ روز انہیں بھڑکاتے ہیں، ایک دو بیان وہ دیتے ہیں، ان کی پوری کابینہ اور وہ خود مطلب بچوں کی طرح وہ تو ہاتھ پھیر کے شروع ہو جاتے ہیں، اور ذاتیات پر اتر آئے ہیں ایک دوسرے کے دشمنی میں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نوٹ کریں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ضیاء الحق گئے، بے نظیر آئیں، تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری نا، یہ سیاستدانوں کو لڑاتی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے لگاتی ہے پوزیشن بنا کے، کہ جب بے نظیر آئیں تو یہ نواز شریف جو آج اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، یہ بے نظیر کے خلاف وہی کرتے تھے جو آج عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں، اور عمران خان بھی وہی کر رہے ہیں جو نواز شریف کیا کرتے تھے۔ پھر سینیریو چینج ہوتا ہے، مشرف یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے لڑتے سب ختم ہو جاتے ہیں، مشرف آ جاتے ہیں۔ مشرف کے دور میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتی ہے، اور لگتا ہے کہ اب یہ بالکل رواداری کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کریں گے۔ تھاٹ فلاسفیکلی اور پولیٹیکلی تھاٹ الگ ہونا چاہیے، اور کوئی بات نہیں ہے آپس میں، مگر ڈیموکریسی میں پارلیمنٹ میں لڑائی ہوتی ہے۔ مگر آپ یہ نوٹ کریں کہ جب وہ زرداری کی حکومت بنی، یوسف رضا گیلانی کی، تو نواز شریف پارلیمنٹ سے باہر سڑکوں پہ آ گئے، اور افتخار چودھری کا جو معاملہ ہے وہ مارچ کے ذریعے طے ہوا، اور آرمی چیف نے خبر سنائی فون کر کے کہ جناب یہ معاملہ طے ہو گیا ہے، جبکہ یہ دونوں بھی بیٹھ کر کر سکتے تھے۔ زرداری میں دیکھیں، زرداری نے چوری تو بہت کی ہے، ان کی پارٹی نے کمال چوری کی ہے، لوٹ مار، قربہ پروری، فرقہ پرستی تک سب کچھ کیا، مگر جو ایمانداری کی بات ہے وہ کہنا چاہیے، وہ ان کو ساتھ لے کے بھی چلے۔ پہلی اپنی حکومت بنائی بے نظیر کے جانے کے بعد، تو خزانہ کی منسٹری بھی ان کو دی، اور 4 ان کے منسٹر لیے، مگر انہیں تو فوج چڑھا رہی تھی تو یہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مارچ شروع کر دیے، اور شہباز شریف کے بیان شروع ہو گئے کہ زرداری کو فلانے چوک پہ لٹکائیں گے اور ماریں گے اور یہ کریں گے۔ تو یہ تسلسل دیکھیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت سمجھدار ہے، انہیں خوب لڑاتی ہے آپس میں، ایک دوسرے کو گندا کرتی ہے، اور پھر ایک نیا نظام لے آتی ہے۔ اب جو یہ لڑائی جہاں پہنچ چکی ہے، سندھ میں تو اینڈ ہی ہو گیا ہے نا۔ اچھا، یہ میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جو پولیس کے ساتھ ہوا وہ تو تھی ایک لا قانونیت، غیر آئینی کام، مگر پھر جو جواب میں پیپلز پارٹی نے کیا، کمال کیا نا، کمال، مطلب ایک ایسا مینیپولیٹ کیا اس کو اتنے کمال طریقے سے کہ حکومت کو دیوار سے لگا دیا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیوار سے لگا دیا۔ پالیٹکس ہو رہی ہے ٹوٹل، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دونوں نقصان اٹھائیں گے، ان دونوں کو گھر جانا پڑے گا، کسی کو کچھ نہیں ملے گا، اور پھر ایک نیا کھیل شروع ہوگا قومی حکومت کے نام پہ۔ ماشاءاللہ کا میں نے کہا تھا آپ سے کل، مگر میں نہیں سمجھتا کہ ماشاءاللہ لگا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ تو اس ملک کو اب ہسٹری کر دے گا، کچھ بچے گا ہی نہیں۔ یہ جو زرداری ٹولہ کھیل کھیل رہا ہے نا سندھ میں، روز دکھا رہا ہے کہ ریاست
वफाक कैसे जुल्म ढा रहा है, कैसे तकलीफ पहुंचा रहा है, कैसे हुकूक खा रहा है, कैसे हमारे पैसे खा रहा है, कैसे हमारे इख्तियारात पर हमले कर रहा है। जज़ायर से लेकर NFC अवार्ड और NFC अवार्ड से लेकर पुलिस की तकरीरियों से आप जहाँ तक चले जाइए, वो रोज़ अपने अवाम को ही बता रहे हैं कि ये इस वफाक के साथ रहना कितना मुश्किल होता जा रहा है। अगर ऐसे में खुदा न खास्ता मार्शल्ला भी आ गई तो क्या क़यामत मचेगी। बहुत कम लोगों को इल्म है, मगर इल्म है कि जब जरदारी साहब न्यूयॉर्क में रहा करते थे खामोशी के साथ, तो अक्सर अपनी महफिलों में कहा करते थे कि पाकिस्तान बाल्कनाइज की तर्ज पे टूटेगा। ये इनके यकीन कामिल है और सिंधियों की बहुत अरसे से ये सोच है। मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वो MNA हुआ करते थे 85 की जुने जो असम्बली में। तो किसी से टेलीफोन पर बात कर रहे थे, तो उसे कुछ जोग्राफिया समझा रहे थे सिंध के पास का। कह लगे बाबा तेरे को नहीं पता, सादकाबाद। अरे बाबा जिधर से वीज़ा लगा करेगा हम लोगों को। तो वहाँ ये सोच बहुत पुरानी है, तो उसको अब प्रमोट किया जा रहा है और एहसास महरूमी बिलाशुबा बढ़ रहा है। अच्छा, फिर सिंध में तो सिचुएशन बड़ी अजीब है। कराची और हैदराबाद के अवाम बिल्कुल अलग हैं, जो रियल बाशिंदे हैं, जिन्हें मैं उर्दू स्पीकिंग कहता हूँ, जिन्होंने ये बस्तियाँ बसाई हैं। ना उनके लिए रोज़गार है, ना उनके लिए नौकरी है, ना उनके लिए तालीमी इदारों में कोई गुंजाइश बची है। वो मशकूक भी हैं, मुहिब वतन भी नहीं रहे। जो कुछ रेंजर्स ने वहाँ किया है, बहुत से लोगों ने मुझे गालियाँ दी कल के वीडियो पर, मगर ये वो लोग हैं, ये उनकी नस्लें हैं जो बांग्लादेश बनने पर बंगालियों को गालियाँ दिया करते थे। अब उनकी औलादें उर्दू स्पीकिंग को, दूसरी तबकात को गालियाँ दे रही हैं। देखें, फ़ौज में मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि जो छोटा अफसर है, जो सिपाही है, वो मेरा भाई है। वो मेरी तरह मासूम सा, आपकी तरह सीधा साधा है। वो बेचारा एक मखसूस तनख्वाह पे काम करता है। कहीं कभी फाटा में मारा जाता है, कभी सियाचिन पे अपनी टांग कटवा लेता है, कभी कोयटा में बलूच बागियों के हाथों मारा जाता है, कभी इंडियन फौजी के हाथों सरहद पे मारा जाता है, ज़ख्मी होता है, अपने हाथ पैर कटवाता है। ये मज़े हैं जनरलों के, ये ब्रिगेडियर से शुरू होते हैं। देखें, आप बार बार नोट करें, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, दुनिया में कोई ऐसी हुक्मरान अशराफिया या फ़ौज है कि हाजिर सर्विस जनरल हैं, ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, मेजर जनरल हैं, आर्मी चीफ हैं, बच्चे बेगम दौलत बाहर हैं। कल मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि आसिम सलीम बाजवा पिज़्ज़ा जॉन वाले, कोई तकरीबन 15 से 16 किनाल का उनका घर है इस्लामाबाद में, जिसमें ज़ेरे ज़मीन आबशार बनाए गए, ऊपर से शीशे लगाए गए। फिर ये कहते हैं कि लोग बातें करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? अगर 50% आबादी बिलो पॉवर्टी रहती हो, भूख से मर रही हो, तो बातें तो होंगी। अच्छा, फिर आप छुप छुप के करते थे पहले जो कुछ करते थे, मगर आपके ही लाए हुए लोगों ने, नवाज शरीफ ने, इमरान खान ने, जमाली ने, मतलब जो लोग भी आए, उन्होंने आपको लाकर आपके बारे में बयानात दे दे के एक एक चीज़ ओपन कर दी। अब मीडिया ने भी आहिस्ता आहिस्ता आपको वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया कि अब आपको भी पता नहीं चलता कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आपने मीडिया पे पाबंदी लगाई हुई है। मगर मीडिया अब भी जो दिखा रहा है वो इतना दिखा रहा है कि आपकी तारीख ख़राब करने के लिए बहुत है वो। तो जनाब, अगर आर्मी चीफ बाजवा साहब ये नहीं समझेंगे कि खेल निकल चुका है, पंजाब के अलावा उन्हें अब हुब्बुल वतनी के हवाले से सिंध में, बलोचिस्तान में मुकम्मल और इंतहाई छोटे पैमाने पर अगर कोई मुखालफत, हिमायत बाकी बची है उनकी खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि वो भी एक बड़ा हिस्सा आबादी का, इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, और पंजाब में डिवीजन हो चुकी है। PTI वर्सेस मुस्लिम लीग, जो PTI के साथ हैं वो फ़ौज के हिमायती हैं, जो मुस्लिम लीग के साथ हैं। मतलब जो पोस्टें आज पंजाबी मुस्लिम लीग के लोग लगाते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, मैं बहुत आज़ाद माहौल में रहकर, बहुत लिबरल माइंडेड होने के बावजूद भी वो पोस्ट अब भी नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरी तरबियत नहीं हुई। मैं एक खौफ के माहौल में पला बड़ा हूँ, पैदा हुआ हूँ, तो मैं अपनी जहनीत के एतबार से ही जिंदा रहूँगा ना। देखें, एक बात और जहन में रखिएगा, ये जो एंड तो ख़त्म होने जा रहा है, ये कोयटा का और ये मुल्तान वगैरह जो जहाँ भी जलसे होने हैं,
उन जलसों के बाद मंजर बहुत सामने आ जाएगा, क्योंकि देखें इस हुकूमत में, ये जो आपकी मौजूद हुकूमत है ना, इसमें पेशेंस नहीं है। वो तो चारा डालते हैं इनको शोर मचाने के लिए, और ये पागलों की तरह बाहर आ जाते हैं। इनकी हालत तो ये हो चुकी है कि इनके अपनी पार्टी में जो दंगे फसाद है ना, इनके अपने लोग सुनाते हैं कि जब इनका अपना कोई वजीर नाकाम होता है ना, तो दूसरे खुश होते हैं। बुज़दार के ऊपर पूरी काबीना में 90% लोग जो है ना खुश हैं जब वो नाकाम होता है। ये बुज़दार के लिए बता दूं, मोहतरम ने एक शादी कर ली है, और पीरनी ने ये शादी ही उन्हें बताई है कि उनकी कंटिन्यूशन के लिए शादी बहुत ज़रूरी है, और इस शादी को तकरीबन अब साल होने वाला है जौहर टाउन में, या क्या कहते हैं वो, इकबाल टाउन में, जहां हमारे बुजुर्ग दोस्त मुजीब शामी साहब रहते हैं। बताने वालों ने मुझे बताया कि जुनूबी पंजाब से ताल्लुक़ है खातून का, 28-29 साल की हैं और मिडिल क्लास की खातून है, और तावीज़ के तौर पे ये शादी उन्हें तजवीज़ की गई थी कि वो इक़्तिदार को संभाल सकें, कंटिन्यूएशन कर सकें और कामयाब हो सकें। तो बुज़दार के बारे में तो अब उनके अपने लोग कहते हैं एक घुग्गू रखा हुआ है, उससे खान साहब के विजन का अंदाज़ा होता है कि खान साहब किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। अपने से ज़्यादा ज़हीन आदमी तो दूर की बात, वो अपने से थोड़ा कम नीचे का ज़हीन भी बर्दाश्त नहीं करते। अब देखें ना, थोड़े हाथ पाँव निकाले थे फवाद चौधरी साहब ने, उन्हें कैसे साइड पे किया। मगर फवाद चौधरी के लिए मैं कहता हूँ कि इन्हें अगर समंदर पे बिठा दो ना, वो वहाँ पे भी अपना टैलेंट दिखा के लहरों से कुछ निकाल लेंगे। तो वो अपनी सलाहियत पर जिंदा है। मतलब ऐसी हुकूमत कैसे चल सकती है जो अपोजिशन इतनी खौफनाक, इतनी बड़ी अपोजिशन से भी लड़ रही हो, और जो सपोर्टर जैसे एक पेज पे बताते हैं वो भी अब तंग आना शुरू हो गए हों, और अपनी सफ़ों में एक दूसरे को गिरा कर लोग खुश होते हो, तालियां बजाते हो और दुआएं मांगते हो कि या अल्लाह ये जो फलाना काम कर रहा है ये गला काम हो जाए इसमें। तो इस सिचुएशन में सोचिए कि हालात कहाँ जाके खड़े हो गए हैं, और खान साहब में टॉलरेंस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ये जहन में रखें कि नवाज शरीफ जरदारी तो इतना बड़ा हमला नहीं करेंगे, करवाएंगे वो लोगों से, मौलाना फजलुर रहमान से, नवाज शरीफ से। जब हमला होगा नवाज शरीफ का या मौलाना फजलुर रहमान का या पीपल्स पार्टी के लोगों का या किसी और जमात का, तो ना इनके वजीरों को काबू है अपने खुद पर, पेशेंस है, कोई तहम्मुल है, और ना प्राइम मिनिस्टर को खुद है। तो ये हालात बंद गली में ऑलमोस्ट दाखिल हो गए। अगले 1-1.5 महीने में पता चल जाएगा। अच्छा ये भी रखिएगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो मुझे लगता है ये सिस्टम चलता रहेगा ऐसी कि रिपब्लिकन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने मफादात के लिए काम करते हैं। मशहूर है ना कि जंगें करवाते हैं, ये पहले डोनाल्ड ट्रंप हैं जो जंगों के खिलाफ है, और इसीलिए इनकी अपनी पार्टी में भी रिवोल्ट है इनके बारे में, और डेमोक्रेट के दौर में भी, ओबामा के दौर तक तो जंगें भी होती रही हैं। और मगर डेमोक्रेट हैं, वो हमारे यहाँ इस तरह के सेटअप को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई माने कोई ना माने। बहरहाल मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि सूरत हाल ख़राब है। पाकिस्तानी अवाम समझें, उसे महसूस करें, वो रास्ता अब निकालें, वो गैदर हों, जमा हों, ये चेहरा बदल जाए ना। आप क्या समझते हैं कि अगर इमरान को भेज दिया तो पीटीआई वाले आराम से बैठेंगे? वो सबसे ज़्यादा वायलेंट है, याद रखिएगा मेरी बात, बहुत बड़ा गदर पड़ेगा। जब तक लोग समझेंगे नहीं कि यह हुकूमत भी नाकाम हो चुकी है, जो जाने वाले हैं वो भी बेहतर नहीं थे, उनको वापस लाने का मतलब ये होगा कि पूरी कौम का बिट्रेल। मतलब नवाज शरीफ एक आधे पंजाब के लीडर है ना, पूरे पंजाब के भी नहीं है। सिंध में, सरहद में और बलूचिस्तान में तो उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना उनकी। तो एक कौमी हुकूमत की तरफ जाएंगे, और इस सूरत में कौमी हुकूमत बनेगी जिसमें ये लड़े हुए हैं, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट प्रिवेल करेगी। याद रखिएगा, बेहतर यह है कि ये दोनों समझदारी का मुजाहरा करें। इमरान खान की हुकूमत अगर अपोजिशन के जोर पर टूटी तो मुल्क में बहुत गदर पैदा होगा। याद रखिएगा, ये यूथ ये जिन्हें मैं कहता हूँ ये मेरे बड़े दुश्मन हैं, मुझसे बहुत खार खाते हैं, मगर मैं ये जानता हूँ कि वो बहुत डाई हार्ट है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता करप्शन से, क्योंकि ये तो वो उन घरों के बच्चे हैं जिन्होंने सारी उम्र ऐश किया है, उनके बड़ों ने रिश्वतें ली हैं, लूट मार की है, उसी निज़ाम का हिस्सा रहे हैं, बच्चे आइडियलिज्म का शिकार हो गए हैं, तो उन्हें क्या पता भूख नंग क्या होती है, और वो ज़िद्दी भी हैं
اور انہیں یہ پتہ ہے کہ ہماری بات کیسے ریفیوز ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ نے کبھی ان کی بات ریفیوز نہیں کی. اور جو تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹی چپل والے ٹوٹی جوتی والے ان کے جلسے میں، موجود اپوزیشن کے جلسے میں کراچی میں گجرانوالہ میں کم تھے، تو ٹوٹی چپل والے نہ کبھی یوتھیوں کے آئے نہ کبھی مسلم لیگ کے آئے. وہ بیچارے کسی لینے دینے میں نہیں ہیں. یہ لوئر مڈل کلاس کے لوگوں کا یہ جلوس جاتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کون ایم این اے کتنے لوگ لے کر جائے گا. یہ سب کی اسی طرح سے ہوتا ہے. عام آدمی بیچارے کا تو اب کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے نزدیک تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ عمران رہیں، نواز شریف رہیں، اسٹیبلشمنٹ آئے، اس کا جینا حرام ہے. تھانہ کلچر نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، عدالتیں نہ بدلی ہیں نہ بدلیں گی، اور یہ جو موجود نظام ہے اس میں کوئی چیز نہیں بدل سکتی. اور نظام بدلنے کے لیے اگر آپ لوگوں نے کام نہیں کیا تو جس کو چاہے لاتے رہیے، یہی مزے لوٹیں گے جو اس وقت آپ مزے لوٹ رہے ہیں. اللہ حافظ.